it is the process 1 to 2. Let us imagine a scenario where we know H1 and H2. So we will just write H2 minus H1. It is our pump work. In generally, we can also consider pump work is negligible. That means it is equal to 0. And if it is equal to 0, then H2 is equal to H1. If we are not having time to solve the numerical, then this will be a very reasonable assumption. So pump work we can consider as any negligible, and then if we are considering it, then H2 is equal to H1. So if we are taking this assumption, then we have to only find H1, H3 and H4, because H1 is equal to H2. So we have found H1, let's say. After that, for boiler, if we know H3 and if we know H1, we simply say the heat given in the boiler Q in is equal to S3 minus H2 or S3 minus H1, because H2 is equal to H1. After that, we have a turbine. Turbine goes from 3 to 4. Here we get the work from a turbine, and work, if we know H3 and H4, we can clearly write work output from turbine is H3 minus H4, and if we find those values, then we can write, okay, we got the work. Now all these things are per unit mass, so these are specific conditions. And in condenser, we know 4 is the inlet of the condenser, 1 is the exhaust of the condenser. Here, how much amount of heat has been exhausted to the atmosphere is equal to H4 minus H1. So if we know H1, we know H2. We want to find H3 and H4. If we can find these three H values, then we can find our turbine work, we can find our heat exhausted from condenser, we can find heat input to the boiler. And if we got all these three values, then we can very easily find out what is our Q out, what is our work of pump, what is our work of turbine. And if we got all these values, then we can very easily write our efficiencies also. So we know efficiency of Rankine or any engine is what we get is upon what we give. Here what we get is net work of turbine minus work of pump, and what we give is Q in. So in specific, if I divide both by the mass, we'll get specific value. So small W into small p means specific work upon Q in. That is equal to nothing but WT is nothing but H3 minus H4, and work of pump is nothing but H2 minus H1 divided by Q in is nothing but S3 minus H2. S3 minus H2. Here we can neglect this also, and we can write here S3 minus H4 upon S3 minus H2. Instead of H2, we can write H1 because H2 is equal to H1. So our efficiency of the Rankine will be H3 minus H4 divided by H3 minus H1. So basically, to find the efficiency, we just need 3 H values, and the work become very easy if we go to our Mollier chart. And our Mollier chart, since Mollier chart is little different from TS diagram, in a terms that instead of this T, we are using now H. And since we are using H, directly we will get the value of H. And since we get the directly value of H, so it is very easy to go and find the efficiency. So this is the critical point here. This will be the critical point here. So here our one P is this and our another P is this. So I have this P value, P higher, P lower, higher, lower. So I have to put those P lines into my HS diagram also. Here in the dome line goes straight because here you are using T.
in the dome here line goes, constant pressure line goes like this. So this is P higher, lower temp line goes like this. This is P lower. And as far as constant temperature line is concerned, it will go like this. From inside the dome I am starting, it is constant temperature line like this. So here, if I have to make the similar Rankine diagram, let me draw with the black. From this is point 1 corresponding to this. This would be my point 1. I could have made the drawing already here, but I am making you just so that you also know how to drive from TS diagram. So I am driving to just make you learn. So here arrows were not there, so I have to make arrows over here. So this is point 1 to 2. From point 2, it is also outside the dome. It is also outside the dome, the liquid region. From point 2, I have to follow the constant pressure line. So it is the constant pressure line, red line. When I go inside the dome, it will also flow green line, follow green line until I reach the outside boundary of the dome. After that, both line again get their different ways. So here I am following this, and I go to the point number 3 corresponding to this. So let's say this is my point number 3. After that, I am expanding it. It is a constant entropy process. Here is also entropy is in the x-axis. So I will get at point 4. Now you can see that here point is 4 is inside the dome. Here also point 4 is inside the dome, and I get my HS value. Now if I make this diagram in HS, clearly I will get H2, I will get H1 directly. I will also get H4, and I also directly get the value of H3. So from HS diagram, this will helpful to me in getting value H1, H2, H3 and H4 directly from HS diagram, and it will make my life very easy as far as calculation is concerned. And all those values I will put here. For turbine, it is for turbine and pump and Q in, so I will put work as negligible. H2 is equal to H1. So I can put here turbine work is nothing but H3 minus H4, and this is nothing but Q in is H3 minus H2 or H1. So I just need 1, 3 and 4. And if I have to compare it with this Rankine cycle efficiency with the Carnot cycle, so I have to see that what is the maximum temperature here. Here, lower temperature is fixed TL. Higher temperature we can take either we can take this temperature or at temperature 2. So which temperature we should take? Anyone can answer? अगर मेरे को यहाँ पे कार्नोट एफिशिएंसी निकालनी है तो T हायर मेरा 0.2 का टेम्परेचर होगा, ये वाले 2 डैश का टेम्परेचर होगा, या 3 डैश का होगा, या 3 का टेम्परेचर होगा. कौन सा टेम्परेचर होना चाहिए? Anyone? So yeah. Point number 3. Very good. Very good. So you are saying point number 3. आप ये बता सकते हो कि point number 2 डैश और 3 डैश में टेम्परेचर का क्या डिफरेंस है? 0. It is same temperature. So अगर मेरे को टेम्परेचर लेनी है तो मेरे को हायर लिमिट लेनी है. मेरा बॉयलर अगर मेरे को डिजाइन करना है तो आप ध्यान से देखिए, आपका बॉयलर इस पॉइंट के ऊपर है. तो आपके बॉयलर में जब हीट देनी स्टार्ट हुई है तो 0.2 हुआ, फिर हायर टेम्परेचर 0.2 डैश हुआ, 2 डैश 3 डैश बराबर है और मैक्सिमम टेम्परेचर 3 तक पहुंचा. तो आपका बॉयलर जब थर्मल उससे डिजाइन होगा कि कितना थर्मल उसमें स्ट्रेंथ होना चाहिए, तो वो 0.3 के बेसिस पे डिजाइन होगा और मैक्सिमम पॉइंट ऑफ हीट 0.3 है, तो मैं T3 टेम्परेचर लूंगा. अगर इसकी जगह पे मैं कार्नोट साइकिल लगाता तो मेरा कार्नोट साइकिल ये लगता, लेकिन मैं अब उसको लगा नहीं सकता, तो मैं सुपर हीट में जा रहा हूं, तो मेरे को यहाँ से 0.3 से ये कांस्टेंट प्रेशर जो 0.3 पे यहाँ पे था उसका कांस्टेंट प्रेशर लाइन फॉलो करना पड़ रहा. तो मैं 0.3 वाले पॉइंट को ले जाऊंगा और उसके हिसाब से मेरे पास
ये आएगा कि कार्नोट एफिशिएंसी कैसे निकालनी है। सो यहाँ पे T3 के H3 के कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है T3, H4 के कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर T4। तो मेरे को यहाँ पे जो लोअर टेम्परेचर है वो है T1 और T2 कोई सम अदर टेम्परेचर उसको मेरे को यूज ही नहीं करना, मेरे को सबसे लोअर टेम्परेचर देखना है और सबसे हायर टेम्परेचर। तो मेरे पास यहाँ पे कार्नोट का एफिशिएंसी आ जाएगा, आपको पता है कार्नोट एफिशिएंसी का होता है Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 वर्क डन। इसको मैं लिख सकता हूँ T1, क्योंकि ये कार्नोट ही मेरे को सुविधा देता है कि मैं रेशियो ऑफ हीट को रेशियो ऑफ टेम्परेचर लिख सकता हूँ। सो दिस इज नथिंग बट 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो मेरे पास T1 की वैल्यू, T1 इज नथिंग बट जो हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे Q1 माइनस Q2 वो अलग से चीजें आ जाएंगी। तो यहाँ पे ये वैल्यूज के साथ आपको चेंज नहीं करना है। यहाँ पे जो Q1 की वैल्यू है और Q2 की वैल्यू है उसमें आप अलग तरीके से अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ तो वो H के कोरस्पॉन्डिंग आएगी। अब इसको अगर मैं भूल जाऊं, यहाँ पे आ जाता है 1 माइनस ये T2 था दैट मीन्स T लोअर डिवाइड बाय ये T1 था दैट मीन्स T हायर। तो यहाँ पे T हायर टेम्परेचर हम कर रहे थे T3 से, T लोअर हम कर रहे थे T1 से, तो T1 बाय T3 आ जाएगा। अगर मैं अदर वे आपको और चीज बताने की कोशिश करूं, जस्ट वन गिव मी अ मिनट। तो यहाँ पे अगर मेरे पास ये डायग्राम बन रही है, जस्ट वन मैं कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट वन, सो दैट ये कंसेप्ट आपका खराब ना हो, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा और इसमें एक्सप्लोर कर देता हूँ, फिर हम थोड़ा आगे जाते हैं। सर जो एफिशिएंसी निकाली आपने, हाँ तो उसमें कंप्रेसर का भी माइनस नहीं करेंगे? बेटा कंप्रेसर है ही नहीं इसमें, कंप्रेसर है ही नहीं, कंप्रेसर की जगह पंप है। और मैंने आपको बार बार कहा है जहां पे पंप आ गया उसको नेग्लिजिबल कर देंगे। अगर कंप्रेसर होता कभी भी निग्लेक्ट ना करते। अगर बच्चे ये चीज यहाँ पे होती ना, ये कंप्रेसर होता तो कभी भी निग्लेक्ट ना करते। सर आपने एक चीज और बोली थी कि सर जो आइडियल केस से रैंकिन साइकिल में डिफरेंस ये होता है कि उसमें इंटरनल फ्रिक्शन लेते हैं और एक्सटर्नल फ्रिक्शन लेते हैं। हाँ, फिर कौन सा लेते हैं इसमें? नहीं ये देखो, ये आपका रैंकाइन साइकिल है। रैंकाइन साइकिल में ये अजम्पशन है कि ये इसमें कोई भी इंटरनल फ्रिक्शन नहीं है, ये इंटरनली रिवर्सिबल है। लेकिन रैंकाइन का आगे जब हम इसको रैंकाइन के बेस पे कोई भी साइकिल बनाएंगे तो वो साइकिल हो जाएगा वेपर पावर साइकिल। वेपर पावर साइकिल एक्चुअल कंडीशन को देखता है, वो कहता है कि नहीं भाई कोई भी सिस्टम करेंगे तो उसमें इंटरनल फ्रिक्शन तो होगी। तो जो इंटरनली इरिवर्सिबल है वो है एक्चुअल वेपर पावर साइकिल, जो इंटरनली रिवर्सिबल है वो है रैंकाइन साइकिल। सिर्फ इसमें इंटरनल रिवर्सिबिलिटी का फर्क है। पर मैं यहाँ पे ये कह रहा था, अगर आप इसी के कोरस्पॉन्डिंग आप कार्नोट साइकिल की बात करो तो आप कार्नोट साइकिल इस तरीके से बनाओगे, ये कार्नोट साइकिल बन जाए। इसमें हायर टेम्परेचर जो आपका है वो है T3 और लोअर टेम्परेचर जो है वो है T1। तो यहाँ पे कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी आ जाएगी 1 माइनस T लोअर अपॉन T हायर, यानी कि 1 माइनस T3 अपॉन T1। जनरली आप क्या कहते थे, सॉरी T3 लोअर तो नहीं, T3 हायर है, यहाँ पे T1 अपॉन T3। तो ये अगर टेम्परेचर आप कर दोगे तो आपके पास कार्नोट का एफिशिएंसी आ जाएगा विच इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी। और ये आपके रैंकाइन साइकिल से हमेशा जो होगी वो ज्यादा होगी काफी, इतना अमाउंट से, क्योंकि ये एरिया अंडर द कर्व ये ज्यादा हो गया। तो आपके पास ये अपर लिमिट सेट कर देगा और आप उस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हो। अदरवाइज आप हमेशा ये करते थे कि यहाँ पे Q1 हीट है, ये Q1 हीट जा रही है, ये Q2 हीट जा रही है, तो Q1 Q2 के हिसाब से यहाँ पे अगर जो मैं उस तरीके से करूं तो इट विल बी Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अब यहाँ पे Q2 जो टेम्परेचर है वो नीचे का टेम्परेचर है, ये वाला, ये यहाँ पे Q2 जा रहा है, Q2 कोरस्पॉन्डिंग कर रहा है T1 को, तो ये आ जाएगा 1 माइनस T1। और Q1 कोरस्पॉन्ड कर रहा है टेम्परेचर T3 से, तो यहाँ पे आ जाएगा T3। बेसिकली ये होता है Q लोअर अपॉन Q हायर, तो T लोअर यहाँ पे T1 है, T हायर यहाँ पे T3 है। तो नोटेशंस में कभी कंफ्यूज नहीं होना। इसके बाद मैं आपको एक और चीज बता रहा था कि हमको अगर हर एक जगह पे H की वैल्यू पता लग जाए
तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। आप ये कर चुके हो। H की वैल्यू कैसे पता लग सकती है? H1, H2, H3 अगर हम HS डायग्राम बना ले। आपने HS डायग्राम अब हम HS डायग्राम को देखते हैं। जो हम HS डायग्राम को जब हम देख रहे हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैंने अभी ड्रॉ किया, ये रहा। ये HS डायग्राम को देखने हैं तो हमको H1, H2, H3 और H4 चाहिए, और हम अगर HS डायग्राम से डायरेक्टली वो देख पाए तो वो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अब वो हम कैसे देखेंगे? आपके पास ये चार्ट दिया हुआ रहता है, आपके पास वो आपको इस चार्ट में या तो 0.4 का वैल्यू देंगे या 0.3 का वैल्यू देंगे। और 0.4 को वो क्या कह सकते हैं? वो 0.4 को कह सकते हैं, क्वेश्चन ये कह सकता है, इट इज द इनलेट टू द कंप्रेसर, सॉरी टू द कंडेंसर, इनलेट कंडीशन टू कंडेंसर। या फिर इसको ये भी कह सकता है एग्जॉस्ट ऑफ आवाज नहीं आ रहा। और कहीं पे इसके बीच 0.4 कहां पे आ सकता है? सबसे पहले लोअर प्रेशर या लोअर टेम्परेचर की लाइन लगाओ। ये डोम के अंदर है, डोम के बाहर प्रेशर की लाइन जाएगी। अब जब आपने लोअर टेम्परेचर या लोअर प्रेशर की लाइन लगा दी तो 0.4 इसी के बीच में कहीं होगा। लेट्स से यहाँ पे पॉइंट था, यहाँ पे हो सकता है या यहाँ पे हो सकता है, डोम के अंदर, लाइन के ऊपर या डोम के बाहर, जहां पे भी ये पॉइंट होगा आप उसको पॉइंट कह दीजिए कि दिस इज योर पॉइंट नंबर 4। या ये हो सकता है या ये हो सकता है, जो भी आ जाएगा। उसके बाद 0.3 तक जाने का क्या कंडीशन है? कांस्टेंट एंट्रोपी। तीनों से आगे 0.3 तक जाने का यही रास्ता है। अगर आपको हायर प्रेशर भी दे देता है वो, तो आपके पास अगर 0.3 आ गया तो नेचुरली आपके पास 0.4 आ गया, तो वहां से आप सीधा जाओगे। हायर प्रेशर आपको पता है तो 0.3 यू विल गेट ऑटोमेटिकली। तो एक पॉइंट दे दिया, उससे पता है कि डायरेक्शन यही जानी है। दूसरा प्रेशर दे दिया तो दोनों लाइन जहां कटेंगे आपका दोनों पॉइंट आ जाएगा और आप दोनों से H3 और H4 निकाल लोगे। कई बार क्या होता है, आपको 0.4 की जगह से 0.3 दे देता है। ओके, हायर प्रेशर दिया, ओके, हायर प्रेशर के ऊपर आपने को हायर टेम्परेचर भी दे दिया, ओके, तो हायर टेम्परेचर हायर प्रेशर से आपके पास 0.3 आ गया। अब लोअर प्रेशर दिया हुआ है आपको, ये रहा लोअर प्रेशर। अब लोअर प्रेशर हायर प्रेशर दे दिया तो आप 0.4 कैसे निकालो? आपको पता है 3 से 4 तक जाने का एक ही रास्ता है, कांस्टेंट एंट्रोपी। नीचे का प्रेशर आपको दिया, जहां कट गए आपके पास वो नीचे का भी पॉइंट आ गया, तो इससे आपके पास 0.4 आ जाता है। या तो आपको 0.3 देता है और उसका नाम इस तरीके से बोलता है क्वेश्चन, एज इट एंट्री टू द टरबाइन, या फिर एग्जॉस्ट फ्रॉम द बॉयलर, तो वो 0.3 दे रहा है। अगर क्वेश्चन ये बोल रहा है एंट्री टू द कंडेंसर या एग्जॉस्ट फ्रॉम द टरबाइन, तो वो 0.4 की बात कर रहा है। तो आपके पास हमेशा ये टीएस डायग्राम, बच्चे एचएस डायग्राम दिख रहा है? मैंने थोड़ा खुला डायग्राम बनाया है। अगर आपको लोअर प्रेशर दिख रहा है, लोअर प्रेशर कोई दिया हुआ है, लेट्स से मेरे को लोअर प्रेशर इसने कह दिया 1 बार, तो मैं 1 बार के ऊपर जाऊंगा। जस्ट लेट मी एनोटेट हियर। जस्ट मैं 1 बार के ऊपर जाऊंगा तो ये मेरा 1 बार हो जाएगा। ये मेरा 1 बार का लाइन जा रहा है स्टूडेंट्स। तो मेरे पास एक लाइन ये आ गया, ब्लैक लाइन से करता हूं ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाए। तो ये मेरा 1 बार का लाइन आ गया, ठीक है। अगर मैं इसके बाद मेरे को उसने लेट्स से कि 20 बार भी दे रखा है, दूसरा पॉइंट जो है वो मेरा 20 बार है, तो 20 बार का, ये 1 बार का है, ये मेरा 20 बार का है, या 50 बार का ले लीजिए। दूसरा प्रेशर मेरे 50 बार का है, तो मेरे पास 50 बार आ गया। फिर मेरे को वो कह सकता है कि एंट्री टू द टरबाइन। हाँ जी, हाँ जी, हु इज दिस? एंट्री टू द टरबाइन जो है वो 50 बार पे है और आपके पास कोई टेम्परेचर है 300। तो मेरे पास अगर मैं 300 टेम्परेचर की भी लाइन लगाता हूं तो मेरे पास ये 300 की लाइन आ गई। यहां से मेरे पास ये पॉइंट फिक्स हो गया और ये पॉइंट लाइन से इधर है, तो सुपर हीटेड पॉइंट आ गया 3। ये भी कह सकता है कि एंट्री टू द टरबाइन 50 बार पे और x की वैल्यू 0.95 है, तो x की वैल्यू मेरे को पता डोम के अंदर ही हो सकती है, तो मैं x की वैल्यू 0.95 ये वाले पॉइंट लेता हूं, तो मेरा 0.3 आ जाएगा। और ये भी कह सकता है एंट्री टू द टरबाइन जो है वो मेरी ड्राई सैचुरेटेड है, तो मेरे पास नेचुरली ये लाइन आ जाएगी। तो मेरे पास 3 डोम के अंदर, डोम के बाहर। डोम के अंदर होगा तो x की वैल्यू होगी, डोम के बाहर होगा तो टेम्परेचर होगा,
अगर लाइन के ऊपर होगा तो उसने कहा होगा ड्राई सैचुरेटेड। जो 0.3 आ गया उससे सीधी लाइन लगा देना। उससे आपको अगर लोअर प्रेशर या लोअर टेम्परेचर पता है तो आपको नीचे की लाइन लगी होगी तो आपके पास पॉइंट नंबर 4 आ जाएगा, और इससे आपके पास H3 की वैल्यू आ जाएगी कोई भी, और H4 की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन आप देखिए, आप जब भी अपने चार्ट में जाओगे आपको चार्ट का ये हिस्सा ही मिलता है, उसमें H1 और H2 आप कभी भी नहीं निकाल सकते। तो H1 और H2 में तो आप कई बार कंपैरिजन करते हो, H1 इज इक्वल टू H2, तो आपको सिर्फ H1 का वैल्यू निकालना है। H1 का वैल्यू निकालने के लिए बच्चे आपको हमेशा ये देखना होगा कि आपको लोअर प्रेशर या टेम्परेचर दिया होगा। आइदर यू हैव बीन गिवन T लोअर जो कि 30-40 डिग्री सेल्सियस होगा, या आपको प्रेशर लोअर दिया होगा P लोअर, वो होगा 1 बार, 0.5 बार या 0.4 बार या 0.8 बार, कुछ भी दिया होगा। तो आप अपने इस प्रेशर और इस लोअर टेम्परेचर को ही T सैचुरेटेड मान लीजिए अगर ये दिया है, अगर P लोअर दिया है तो उसको P सैचुरेटेड मान लीजिए, और उसमें आप अपने डायग्राम में आप अपने स्टीम टेबल में जाएंगे और स्टीम टेबल में जाके आप उसको सॉल्व करेंगे, उसको क्वेश्चन फाइंड करेंगे। कैसे? H1 H2 H3 हो गया, उसके बाद अगर लोअर पे जाना है तो आप अपने स्टीम टेबल पे जाओगे। ये देखो मैं गया स्टीम टेबल पे, मान लीजिए मेरे को लोअर टेम्परेचर दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस, तो मैं टेम्परेचर टेबल में जाऊंगा बच्चे। ये देखो मैं आपको टेम्परेचर टेबल में जाके दिखा रहा हूँ। ये मैंने मोलियर डायग्राम खोला है, सॉरी ये मैंने अपना स्टीम टेबल खोला है, मैं आपको स्टीम टेबल दिखा देता हूँ। ये स्टीम टेबल है, इसमें मेरे को लेट से टेम्परेचर दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस। उसमें मेरे को अपना पॉइंट निकालना है कि H1 का वैल्यू क्या होगा। तो ये जब आप टेबल खोलते हो उसमें पहले कुछ एक्सप्लेनेशंस दी हुई है, उसके बाद ये बेसिकली टेबल है 5। मेरे को टेम्परेचर टेबल में जाना है क्योंकि मेरे को वाटर का देखना है इधर के तरफ सैचुरेटेड वाटर में, तो मैं सैचुरेटेड वाटर एंड स्टीम टेम्परेचर टेबल में जाऊंगा, पेज नंबर 1 to 6। वहां पे टेम्परेचर में जाके वहां पे देखूंगा कि मेरा टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस कहाँ आ रहा है। ये मेरे को ये मिल गया 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस पे एक ही प्रेशर हो सकता है सैचुरेटेड प्रेशर, उसकी वैल्यू भी मिल गई 0.0737। इसके ऊपर मेरे पास सारी वैल्यूज बच्चे यहाँ पे दिख रही है। और अगर यहाँ पे मैं स्टीम की वैल्यू देखना चाहूँ कि मेरे Hg जो मेरा ड्राई सैचुरेटेड वेपर होगा उसकी वैल्यू मेरे पास 2574 है, इसकी वैल्यू की जरूरत नहीं है मेरे को वैल्यू की जरूरत है HF की, वो है 0.167। अब ये 0.167 बच्चे पता कौन सा पॉइंट है? मैं अगर आपको अपने उसमें लेके जाऊं जो मैंने फिगर बनाई थी, ये पॉइंट है बच्चे। अब ये न्यूमेरिकल मैंने आपको दोबारा से अपना लेक्चर का टाइम खराब करके सिखा दिया है। ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 1, ये 1 कौन सा पॉइंट था? जो भी लोअर टेम्परेचर है जो कि 40 डिग्री सेल्सियस मैंने यहाँ पे माना था, उसके ऊपर लिक्विड क्या इंथैल्पी होगा, वो H1 मेरे को स्टीम टेबल से आ गया। इट इज H फ्लूइड लिक्विड एट 40 डिग्री सेल्सियस या जो भी लोअर टेम्परेचर दिया हुआ है, वो आप कहां से देखोगे? सैचुरेटेड वाटर स्टीम टेबल फ्रॉम स्टीम टेबल, सैचुरेटेड वाटर स्टीम टेबल जो टी स्टीम टेबल के आपके साथ में दिया हो। तो आपके पास H1 की वैल्यू आएगी हमेशा टेबल से, H2 की वैल्यू की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि H1 के बराबर है। H3 और H4 की वैल्यू आपकी टेबल से भी आ सकती है और चार्ट से भी आ सकती है। मैं रेकमेंड करूंगा कि दोनों से निकाल के देखो कि सेम आती है। चार्ट में वैल्यू देखने से थोड़ा बहुत अंतर पड़ जाता है, वैल्यूज हल्की हल्की गलत हो जाती है। मेरे को यहाँ पे अगर आपका चार्ट देखने में मोटा मोटा कोई गलती हो गया तो मैं उसके मार्क्स नहीं काटूंगा, लेकिन इतना बड़ा गलती नहीं होना चाहिए कि आपकी एफिशिएंसी 125% आ जाए या 60% से ऊपर आ जाए या कार्नोट से भी ऊपर आ जाए। तो आपको समझ में आना चाहिए कि बड़ी भयंकर गलती होगी देखने में। तो छोटी मोटी गलती 10-20% का ओवरऑल H का वैल्यू में चेंज आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना चेंज ना आ जाए कि एफिशिएंसी ऊपर नीचे हो जाए, वो सारे कंसेप्ट की धज्जियां उड़ जाए। इतना नहीं करना है। तो बच्चे यहाँ पे हमने ये सारा अभी कर लिया है। तो हमारे पास अभी हमने TS डायग्राम से सारी बातें सीख रहे हैं और हमने ये सीखा है अभी तक। अब मैं नेक्स्ट कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास TS डायग्राम है और उसमें हमारे पास जो ये हायर प्रेशर, ये लोअर प्रेशर, ये हमारे पास डायग्राम बनता है, तो मेरे पास ये 1 2 3 4 ये वैल्यूज बन गई।
अगर इसी जगह पे मेरे को कार्नोट साइकिल का वैल्यू देखना है तो मैं जो टेम्परेचर लेता हूँ वो लेता हूँ 1 और 2 पॉइंट ले लेता हूँ बिल्कुल इधर बराबर, और 2 और 3 पे होता है ये। तो मेरे पास मैक्सिमम एफिशिएंसी आ सकती है ये रेड एरिया जो बढ़ गया, और कार्नोट मेरा दे रहा है ये वाला एरिया जो इधर ब्लैक साइकिल के अंदर का एरिया। तो इसको मैं यहां तक मैक्सिमम अगर बढ़ाना चाहूं तो मेरे को एरिया अंडर द कर्व बढ़ाना पड़ेगा। एरिया अंडर द कर्व में कभी भी इसको ऊपर कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन नहीं लेके जा सकता, तो मैं क्या करूं कि एरिया अंडर द कर्व बढ़े। अगर मेरे पास ये 3 ही लाइनें हैं, मैं इस 1 2 को और ठंडा करके इधर तो लेके नहीं जा सकता। तो बच्चे अगर मेरे को इस एरिया अंडर द कर्व बढ़ाना है तो या तो मैं 1 4 लाइन को नीचे कर दूं थोड़ा सा और, तो मेरा ये एरिया बढ़ सकता है। तो ये कह रहा है कि अगर लोअरिंग द कंडेंसर प्रेशर कर दूं तो मेरा ये नीचे वाला एरिया बढ़ जाएगा और मेरा वर्क अंडर द साइक्लिक कर्व बढ़ सकता है, और वर्क बढ़ेगा तो मेरा एफिशिएंसी बढ़ सकता है, क्योंकि एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन इज वर्क नेट अपॉन क्यू इन। मैंने क्यू इन को कोई चेंज नहीं किया, तो मेरे सिर्फ वर्क नेट को बढ़ा दिया तो भी मेरा चेंज हो गया। वर्क नेट इज इक्वल नथिंग बट Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अब यहाँ पे अगर Q1 बढ़ जाए, चाहे वो डिनोमिनेटर में भी है लेकिन आपका न्यूमिनेटर भी तो बढ़ेगा, तो वो कह रहा है कि अगर Q1 को भी बढ़ा दूं मैं, Q1 को इसके ऊपर तो लेके नहीं जा सकता, मैं ऐसे कर सकता हूँ कि 0.3 को थोड़ा और आगे ले जाता हूँ, 3 को यहां तक ले जाता हूँ। तो उससे क्या होगा, ये पॉइंट मेरा नीचे आएगा और ये इधर आएगा कांस्टेंट प्रेशर, तो मेरा ये वाला एरिया और बढ़ सकता है। और तीसरा क्या चूज हो गया, 1 2 को तो कुछ चेंज नहीं कर सकते, वहां पे तो पंप है। तीसरा ये है, वो कहता है कि आप बॉयलर प्रेशर ही तो बढ़ा सकते हो, 0.2 को यहाँ पे ले जाओ, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन फॉलो करनी है तो ये वाली कर लो, तो ये लाइन बढ़ जाएगा। तो मैं एक इसमें 3 जगह पे एरिया बढ़ा सकता हूं, या तो कंडेंसर प्रेशर को लोअर कर दूं तो मेरा एरिया बढ़ जाएगा, या मैं सुपरहीट कर दूं 3 को आगे ले जाऊं और ज्यादा सुपरहीट कर दूं हायर टेम्परेचर तक, तो मेरा यहाँ पे आके और एरिया बढ़ जाएगा, या मैं बच्चे बॉयलर प्रेशर को ही बड़ा कर दूं। तो इन सभी चीजों में से जो भी मैं चीज करना चाहूंगा उससे मेरे पास मेरे एफिशिएंसी बढ़ने का और कार्नोट एफिशिएंसी के थोड़ा सा और पास होने का चांस आ सकता है। क्यों ना ज्यादा एफिशिएंसी के ऊपर जाया जाए, मैं हर एक केस को डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले ये कह रहा है कि लोअरिंग द कंडेंसर प्रेशर, a reduction in condenser pressure automatically reduce the temperature at which heat is rejected and it improves the thermal efficiency। अगर मैं बात करूं तो वो एरिया भी बढ़ रहा है, अगर दूसरी तरह बात करूं तो T लोअर और नीचे जा रहा है, तो अच्छी बात है ना, उससे कर सकता है। स्पेशली इन, तो जैसे ही आप T लोअर जाओगे, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्विज में आती है। द कंडेंसर ऑफ स्टीम पावर प्लांट्स यूजुअली ऑपरेट वेल बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर in order to take advantage of increased thermal efficiency और low pressures। आप ये वाला जो नीचे वाला पॉइंट है, 4th पॉइंट, ये किसी लोअर टेम्परेचर पे लेके जाना चाहोगे। आप कोई स्टूडेंट यहाँ पे मेरे को अनम्यूट करके बोले कि टी लोअर, कितना लोअर जा सकते हो आप? आपने पावर प्लांट लगाना है, कंडेंसर लगाना है, कंडेंसर का टेम्परेचर जितना लोअर लेके जाना चाहते हो उतना लोअर लेके जाना चाहोगे, और इसको टी हायर को जितना हायर लेके जाना चाहोगे उतना हायर। अभी हम बात सिर्फ कंडेंसर के टेम्परेचर पे करते हैं, कितना लोअर लेके जा सकते हो रियल लाइफ कंडीशन में। अब हम प्रैक्टिकली बनाने की बात कर रहे हैं। टी लोअर शुड बी कितना हो सकता है? एनीवन कैन अनम्यूट एंड टेल मी कि टी 0 कैसे जाएगा बच्चा? 0 लगाने के लिए तो आपको रेफ्रिजरेटर लगाना पड़ेगा। रूम टेम्परेचर टी लोअर आपका एटमॉस्फेरिक रूम टेम्परेचर, इससे नीचे तो जा नहीं सकते। इससे नीचे जाने के लिए तो आपको फिर रेफ्रिजरेटर्स लगाने पड़ेंगे। अच्छा, रूम टेम्परेचर जनरली पटियाला में हमको लगाना है, लेट्स से थापर यूनिवर्सिटी के पास पावर प्लांट, कितना होगा? 28। चलो 30 लगा लेता हूँ मैं, 30 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब टी लोअर 30 से नीचे तो जाने का सवाल ही नहीं पैदा। 30 से ऊपर अगर मैं 40 50 लेता हूं तो मेरे को नुकसान होगा, एरिया कम हो जाएगा। तो जितना लोअर हो सकता है मैं उतना लूंगा। अब टी लोअर के ऊपर तो मैंने फिक्स कर दिया। अब पी लोअर प्रेशर कितना रखूं बच्चे? लोअर। अगर ये मेरा फिक्स हो गया, इट इज फिक्स्ड, तो पी लोअर कितना हो जाएगा? एनीवन? फिर से बोलो। अगर मेरा टी लोअर फिक्स हो गया 30 डिग्री सेल्सियस, तो मेरा जो कंडेंसर है वो किस प्रेशर पे होगा? ये लोअर फिक्स हो गया इक्वल टू 30। अब पी लोअर किस? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि 1 बार के ऊपर।
किसी को डाउट है यहाँ तक? नो सर। अरे 1 बार के ऊपर, अच्छा अब मेरे को और क्वेश्चन बताओ। 1 बार के ऊपर सभी ये गलती करते हो, इसलिए दिखा रहा हूं, अगर किसी को लग रहा है ना बोर है तो अब पता लगेगा क्या कितना समझ में आया। 1 बार के ऊपर टी सैचुरेटेड क्या आता है टेम्परेचर? 1 बार के ऊपर कितने टेम्परेचर पे बॉयल करती है वाटर? 100 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चे डोम के अंदर तो एक टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग एक ही प्रेशर होगा। 1 बार के कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर तो 100 होता है हमेशा। तो अगर अंदर का टेम्परेचर फिक्स कर दिया आपने, लोएस्ट ऑफ लोएस्ट जाना चाहते तो वो 30 एटमॉस्फेरिक ही जा सकते हो, तो अंदर का प्रेशर अपनी मर्जी से कैसे ले सकते हो? वो तो 30 डिसाइड करेगा कि क्या व्हाट इज पी सैचुरेटेड एट 30, क्योंकि आपको 30 पे फेज चेंज कराना है। हाँ जी सर। तो वो पी सैचुरेटेड 30 पे क्या आता है बच्चे, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ ये आपको। पी 30 के ऊपर पी सैचुरेटेड कम आएगा बहुत। तो पी सैचुरेटेड क्या आता है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये रहा 30 आपका, 30 के ऊपर पी सैचुरेटेड आ रहा है 0.04242, 0.1 भी नहीं है, इतना कम। ये वैक्यूम प्रेशर है। दैट्स वाई, क्योंकि आप लोअर जाते हो। अगर आप अपने इस लोअर को 1 बार पे रख लोगे तो आपका टी लोअर 100 फिक्स हो जाएगा, लेकिन आप उसको 30 तक देना चाहते हो। दिस इज द रीजन कि आपका 0.4 जो होता है वो हमेशा वैक्यूम में होता है और आपको वैक्यूम पंप लगा के वो क्रिएट करना पड़ता है। किसी को यहां तक कोई डाउट? सर एक बार जो लोअर टेम्परेचर आपने रूम टेम्परेचर का बोला था, एक बार उसका रीजन फिर से बता दीजिए। अरे अगर हम सबसे लोअर टेम्परेचर तक लेके जाना चाहते हैं अपने कंडेंसर को, कितना लोअर तक लेके जा सकते हैं? जितना रूम है उससे लोअर तो लेके नहीं जा सकते। अगर आपके पास कोई गर्म चाय पड़ी है, आप उसको कितना ठंडा कर सकते हो विदाउट यूजिंग रेफ्रिजरेटर? कितना ठंडा कर सकते हो? जितना रूम टेम्परेचर उससे ठंडा नहीं कर सकते। अगर आपको ठंडे से ठंडा भी करना है तो आप रूम टेम्परेचर तक ही कर सकते हो विदाउट यूजिंग एक्सटर्नल एयर। अदरवाइज आप फिर 100 डिग्री के ऊपर लेके जाओ तो फिर वो ठंडा नहीं हुआ, लूज करोगे। तो टी लोअर अगर फिक्स्ड हो गया तो पी लोअर भी फिक्स होगा कोरस्पॉन्डिंग टू टी लोअर। समझ में आ गया? तो इसके कारण एक तो ये क्वेश्चन हमेशा क्विज में आता है और मैं डालूंगा कि क्या जनरली आपका पावर प्लांट का एग्जॉस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होता है या वैक्यूम में? तो इसका आंसर क्या है बच्चे? वैक्यूम, ऑलवेज वैक्यूम। अच्छा, अब मेरे को एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर बताओ। मैंने एक पावर प्लांट लगाया बिल्कुल सेम, एक लगाया पटियाला में, एक लगाया शिमला में। कौन से कोई चीज डिफरेंट नहीं है, कौन से पावर प्लांट की एफिशिएंसी ज्यादा होगी? दोनों की सेम होगी। क्यों? शिमला वाले टेम्परेचर डिफरेंस देख रहे हैं ना। हाँ भाई, सेम नहीं होगी। शिमला रूम टेम्परेचर शिमला में कम होगा ना। शिमला में जो टेम्परेचर है, पटियाला में टेम्परेचर अगर आज 30 है तो शिमला में 25 तो होगा, और 20 होगा बल्कि। तो वहां पे हम 20 तक जा सकते हैं और प्रेशर और लोअर कर सकते हैं। लोअरिंग द कंडेंसर प्रेशर मींस, ये तो डिपेंड करता है लोअरिंग टेम्परेचर के ऊपर, हमारे हाथ में तो है ही नहीं। तो जो जगह ज्यादा ठंडी होगी उसमें आपको ज्यादा वर्क मिलेगा और आपका ज्यादा एफिशिएंट होगा। अगर मैंने एक पावर प्लांट यहाँ पे बनाया और एक न्यू जर्सी में बनाया, तो न्यू जर्सी का पावर प्लांट अगर सेम चीजों में लगा है तो लोअर टेम्परेचर उसका एटमॉस्फेयर डिसाइड कर रहा होगा, और जहां पे ठंडा एटमॉस्फेयर है वहां पे एफिशिएंसी ज्यादा होगी। यस क्वेश्चन सर। जब लेकिन जो बॉयलर जब चलेगा हमारा, सर बॉयलर तो सर हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वहां से राइज करता है टेम्परेचर। अरे नहीं बच्चे, गलत। 0.1 से 2 तक बॉयलर जो है, ये 0.2 मान लीजिए 200 बार है। अब 200 बार के ऊपर ये जो बॉइलिंग टेम्परेचर है ये बहुत ज्यादा होगा। 200 बार पे कितना बॉइलिंग टेम्परेचर है मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। जो बॉइलिंग टेम्परेचर है 200 बार पे, फिर हम सुपर हीट भी कर रहे हैं। आप ये देखो यहाँ पे, अगर मैं 200 बार तक लेके जाना चाह रहा हूँ, मैं आपको ले चलता हूँ 200 बार पे। जस्ट 1 मिनट, गिव मी टाइम। अब यहाँ पे सर बहुत जैसे कि अगर हम लोग पटियाला में होते तो सर हमें सर 28 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट करना पड़ता, मतलब नहीं, मैं बता रहा हूँ। रुको, ये रहा 300 बार। अब मैं मान लो कि प्रेशर 200 प्रेशर टेबल के पास जाता हूँ, मैं बताता हूँ। आपका क्वेश्चन भी समझ गया मैं, मेरे को टाइम दो। यहाँ ये प्रेशर टेबल आ गया। प्रेशर टेबल में मैंने 200 बार तक लेके जा रहा हूँ, तो मैं ये आ गया।
अब 200 बार के ऊपर टेम्परेचर कितना है मेरा जहां पे वो बॉयल करेगा, 365। अब इसको देखिए बच्चे, जो आप कह रहे हो हाँ, यहाँ पे आपने 200 बार तक लेके आ गया। अब आप कह रहे हो यहाँ पे ये वाला भी तो यहाँ पे हायर टेम्परेचर देना पड़ेगा। बेटा हायर टेम्परेचर को मैंने फिक्स कर दिया है। आप कह रहे हो यहां से ये, अच्छा या तो आप यहां से यहां जाओगे 30 से, या आप यहां से यहां जाओगे। बेटा ये तो नेग्लिजिबल है, मैंने कई बार आपको कहा है H1 माइनस H2 इज नेग्लिजिबल। ये अगर मेरे को यहाँ पे 100 रुपए का बिजली मिल रहा था, 100 रुपए का टरबाइन था, यहाँ पे 5 पैसा लगे या 7 पैसा लगे, क्या फर्क पड़ता है? 7 पैसा भी नेग्लिजिबल है, 5 पैसा भी नेग्लिजिबल है। जो आपके क्वेश्चन का मैं आंसर करूं, क्योंकि पंप है तो 7 पैसा 5 पैसा दोनों ही नेग्लिजिबल है। पंप वर्क चाहे यहाँ पे कर लो चाहे यहाँ पे कर लो, नेग्लिजिबल है। ये वाला जो आप एरिया बता रहे हो ना, ये भी ये भी कुछ नहीं है, ये भी नेग्लिजिबल है। ये दोनों आप अगर एक्चुअल वैल्यू देखोगे ना, आप कहोगे तो इतने पॉइंट के अंदर की वैल्यूज को मैं कंसीडर ही क्यों करूं। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा हीट देना पड़ भी रहा है ना आपको, इट इज लाइक 1000 रुपए में 5 पैसा। और सर जो सर आपने बताया कि सर हम लोग फिर वैक्यूम पंप भी लगाते हैं वहां पे, तो सर जो एफिशिएंसी होगी फिर उसमें सर वैक्यूम का भी सर पावर माइनस करना पड़ेगा, वो भी नेग्लिजिबल है बच्चे। वैक्यूम पंप की एक्चुअल में वैक्यूम पंप भी लगता है, और वैक्यूम पंप लगाने से आपकी एफिशिएंसी कम आती है रियल एक्चुअल में। जितना वैक्यूम पंप ज्यादा लगेगा उसकी कंसीडरेशन में यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। और वो भी हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। वेरी नाइस क्वेश्चंस, एंड उसके मेरे आंसर देते हुए भी अच्छा लगा। तो बच्चे 2 तरीके के आपके वो क्वेश्चंस आते हैं क्विज में। पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या आपका जर्नली जो आपका एग्जॉस्ट होता है वो वैक्यूम में होता है, तो उसका आंसर है यस, एग्जॉस्ट वैक्यूम में होता है। क्या आप एग्जॉस्ट को 100 डिग्री सेल्सियस में करना चाहोगे? नहीं, क्योंकि लोग कहते हैं कि एग्जॉस्ट आपका 1 बार पे होता है तो वो दिमाग में आता है, तो ऐसा नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन, अगर 2 पावर प्लांट लगे हैं, एक पटियाला में एक न्यू जर्सी में, तो न्यू जर्सी वाला पावर प्लांट ज्यादा एफिशिएंट होगा। अगर 2 पावर प्लांट लगे हैं, एक जैसलमेर में एक पटियाला में, तो पटियाला वाला ज्यादा एफिशिएंट होगा। अगर सेम बॉयलर के ऊपर लगे हैं, क्योंकि बॉयलर अगर आपने सेम रख दिया तो आपने 200 बार के ऊपर ये 365 पे बॉयल करेगा और ये 550 तक आपका जा रहा है। यहां तक कोई डाउट हो बच्चे? यहां तक कोई डाउट हो किसी को? ओके, सो नेक्स्ट अब आ गया लोअरिंग कंडेंसर प्रेशर के बाद आ गया सुपर हीटिंग द स्टीम टू हाई टेम्परेचर। अगर अब आपको टेम्परेचर हाई करना है तो आपने बॉयलर प्रेशर फिक्स कर लिया, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स सेम। इफ साइकिल एफिशिएंसी कैन बी इंक्रीज्ड बाय हीटिंग द स्टीम टू हायर टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इन सुपरहीट रीजन बिफोर अलाउइंग इट टू एक्सपैंड। Superheating steam also reduces the moisture content at the turbine exit and result in less erosion of the turbine. तो वो इस बात को बात कर रहा है बेटा। अगर आप 3 यहाँ पे लेके जा रहे थे तो क्यों ना आप 3 को यहाँ पे ले जाओ, उससे आपका 4 पॉइंट और बाहर आएगा और इतना आपका और एरिया अंडर द कर्व बढ़ जाएगा। तो आपका ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्यू इन नहीं हो रहा था ना, क्यू इन को आप यहाँ पे बढ़ा भी सकते हो। अगर मैं इसको कंपेयर करूं ना, यहाँ पे कार्नोट एफिशिएंसी क्या है, इज इक्वल टू 1 माइनस टी, या इसको मैं T4 कह दूं या T1 कह दूं, एक ही बात है। 1 माइनस ये T4 कह देता हूं इसको, डिवाइडेड बाय T3। ये तो मेरे पास हो जाएगा कार्नोट एफिशिएंसी, क्योंकि कार्नोट का साइकिल अगर मेरे कोरस्पॉन्डिंग साइकिल की बात करूं तो मेरा ये हो जाएगा। अगर मैं अपने रैंकाइन का भी एवरेज मीन टेम्परेचर ले लेता हूं तो ये उसको, इस लाइन को ये टेम्परेचर कम कर रहा है, ये बढ़ा कर रहा है, तो मेरा मीन टेम्परेचर हो जाएगा ये वाला। अगर मैं अपना सुपर हीटेड बढ़ाता जाता हूं तो मेरा मीन टेम्परेचर ऊपर की तरफ जाता जाएगा। तो अगर मैं इसमें रैंकाइन की एफिशिएंसी की बात ले लेता हूं, इट इज नथिंग बट H3 माइनस H4 अपॉन H4, सॉरी हाँ, H3 माइनस H1। तो ये Q इन हो गया, इट इज नथिंग बट Q इन वर्क टोटल 3 माइनस 4। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 माइनस T लोअर, तो बच्चे सेम ही है 4। यहाँ पे मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन लिख देता हूं T मीन। ये जो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन है बच्चे, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, मेरे को 5 मिनट ही रह गए हैं यहाँ पे, आप ही के बेनिफिट के लिए कह रहा हूं, तो आई विल डू दैट।
तो यहाँ पे मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन ये आ गया। तो जितना मैं हायर टेम्परेचर तक जाता रहूंगा मेरा टी मीन बढ़ता रहेगा, जितना टी मीन बढ़ता रहेगा ये वैल्यू कम होती रहेगी और मेरी एफिशिएंसी ऑफ रैंकिन साइकिल बढ़ती रहेगी। यानी कि एक तो मैं इसको जितना नीचे कर सकता था वो हो सकता है, लेकिन वो तो मेरा फिक्स्ड हो गया, एटमॉस्फेरिक के नीचे तो कर ही सकता, एटमॉस्फेरिक तक पहुंच गया तो लिमिट है। अब मैं 3 को जितना ऊपर ले जाऊं उतना अच्छा है, क्योंकि उतना मेरा टी मीन जो मेरा सिर्फ माना हुआ है कि मैं अगर उसको कांस्टेंट, इसमें जितनी हीट इस लाइन के अंदर जा रही है कांस्टेंट प्रेशर की, अगर उसी के कोरस्पोंडिंग कांस्टेंट टेम्परेचर लगा लूं तो वो मेरा टी मीन सूडो टेम्परेचर ऑफ सूडो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन आ जाएगा, और उसको मैं डायरेक्टली इसके साथ कंपेयर कर सकता हूं। ये कार्नोट का हो गया, ये रैंकिन का हो गया, इज इक्वल टू 1 माइनस T4 अपॉन टी मीन, जो कि सूडो टेम्परेचर है। अगर मैं यहाँ पे इसी कांस्टेंट प्रेशर लाइन के जितनी हीट गई है उसी कांस्टेंट टेम्परेचर मान लो, अगर वो टेम्परेचर में जा पाती तो कितनी टेम्परेचर पे जाती, तो जितना मैं ये टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा उतना टी मीन बढ़ता जाएगा। अच्छा, मेरे को सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर दे दो, मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। मैं T3 को कितना बढ़ा सकता हूँ? यहाँ 3 ले सकता हूँ, ये ले सकता हूँ, ये ले सकता हूँ, ये ले सकता हूँ, कितना आगे तक जाऊं? जितना हमारा मटेरियल अलाउ करता है, जितना अपना मटेरियल अलाउ करता है। तो 3 पॉइंट इज लिमिटेड टू मेटलर्जिकल कंडीशंस, और मेटलर्जिकल कंडीशन कहती है कि आप 650 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा आगे जाओगे तो आपका मटेरियल मेल्ट होने लग जाएगा, बॉयलर ही नहीं काम करेगा। तो 650 इज द मैक्सिमम लिमिट, उसके कोरस्पोंडिंग जो टी मीन आ गया डन। सुपर हीटिंग हम करना चाहेंगे, उससे एडवांटेज होती है कि हमारा एफिशिएंसी बढ़ता है। हम 4 पॉइंट को इसके बाहर भी लेके जाना चाहेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारा कंडेंसर ये वाले सुपर हीटेड रीजन में भी चले, मुश्किल होती है कंडेंसर डिजाइन करना। सर ये तो जब X1 हो जाएगा तब तक ही सुपर हीट कर सकते हैं। हाँ, जब तक X1 हो वहां पे भी लिमिटेशन है, यहाँ पे भी X1 तक लिमिटेशन है, और यहाँ पे भी हमारा 650 तक लिमिटेशन है। तो यहाँ पे ज्यादा इधर जाने तक लिमिटेशन होता है। उसके बाद अगर बात करें, सुपर हीटेड की बात कर ली, लेकिन आपके पास एक और चीज चाह रहा है। अगर आपके पास वो नहीं कर सकते सुपर हीट, तो आप कम से कम बॉयलर प्रेशर ही बढ़ा दो। यहां तक तो आपकी लिमिटेशन आ गई नीचे वाले की, लेकिन चलो आप यहां से आगे नहीं जा सकते, ये मत करो। आप अपने बॉयलर जो अपना ये ले रहे थे उसको ज्यादा, ये पहले आप 200 पे ले रहे, पहले आप 180 पे ले रहे थे, अब 200 पे ले लो। अगर 200 तक ले लोगे तो ये एरिया आपका बढ़ जाएगा, लेकिन मेटलर्जिकल लिमिट वही रहेगी, तो आपको यहीं से वापस आना पड़ेगा। प्रेशर बढ़ाने का नुकसान ये होता है कि आपका ये पॉइंट अंदर की तरफ आ जाएगा, 4'। हाँ जी, क्या सर 4 पॉइंट को हम डोम के बाहर क्यों लेना चाहेंगे? नहीं लेना चाहते कभी 4 पॉइंट को, कभी डोम के बाहर नहीं लेना चाहते, इसके अंदर ही रखना चाहते हैं, क्योंकि डोम के बाहर लेंगे तो आपका जो कंडेंसर है वो आपका सुपर हीटेड रीजन में आ जाएगा, उसमें कंडेंसर को डिजाइन करना मुश्किल होता है। हम कहते हैं कि 4 पॉइंट या तो इस लाइन पे आ जाए तो परफेक्ट है, या फिर आपका 85.85 पे टरबाइन खराब हो जाती है, एक्स अगर इससे कम हो जाए तो आप 0.4 को लिमिट करते हो कि 0.85 से लेके 1 के बीच में रहे, 85 to 1, x इज इक्वल टू 0.85 to 1 के बीच में ही आपका कंडेंसर है, आप सुपर हीटेड में नहीं जाना चाहोगे। तो मैक्सिमम 3 पॉइंट आपका यहाँ तक ही आता है, और क्योंकि आप इसमें ये 65 से ऊपर चलते हो तो यहाँ पे नहीं जा सकते, तो दिस इज द रिंग। या तो इसको बढ़ा दो, ये लिमिट आ जाती है, या फिर इसको बढ़ा दो तो आपका 4 पॉइंट अंदर चल जाता है। अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो आपका ये ब्रीच होने का चांसेस होता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो सुपर हीटेड रीजन में तो मैक्सिमम टेम्परेचर 650 ब्रीच होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, और नीचे x के 1 इज इक्वल टू यहाँ पे सुपर हीटेड जाने के चांसेस हो जाते हैं। तो दोनों में ये लिमिटेशन है। लोअर टेम्परेचर के तो ऊपर आपने फिक्स कर दिया जो भी एटमॉस्फेरिक होगा, बाकी दो जो चांस बच गए, या तो बॉयलर प्रेशर बढ़ाओ या आपका ये बढ़ाओ। अब हम इन दोनों के बीच का कोई तरीका ढूंढेंगे नेक्स्ट क्लास में। एनी अदर डाउट बच्चे? सर ये जो x वाला आपने तब बोला कि 0.85 और 1 के बीच में होना चाहिए, तो इसका मतलब तो सर बॉयलर बंद ही नहीं होता होगा, तो कितने सालों बाद बंद होता होगा? अरे बॉयलर एक बार चल गया तो 3-3 साल नहीं बंद होता, वो 3-3 4-4 साल। मैंने कई बॉयलर ऐसे भी देखे जो 6-6 साल बंद नहीं हुए। एक बार चल जाए तो वो 6-6 साल चलते रहते हैं, 24 आवर्स। ठीक है ना? 5 जनरली 3.5 से 4 साल बाद